ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. ہم یہی کر سکتے تھے نا, لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے, اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے, جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے, جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے, اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, امام خامنائی کو وہ رحمت اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی, صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر جی وہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھئی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اس وقت بھی استامن ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا, کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی استامن ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھئی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود, ٹھیک ہے, خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر, اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے, آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی, وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح کرتے ہیں. بھائی پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا, اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا, اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے. مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے, جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا, مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے, جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا, پھر پی ٹی آئی کو کیا, اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی, ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں, اور جناب 120 جہاز گر گئے, آج 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا. یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے, ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا, اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے, ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بال عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا, افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا, امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ اور قبرستان ہمارا بنا ہے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں, 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بگا دیں گے, 20 سال تک بچارے پہاڑوں میں چھپے رہے. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان. ہاں, یہ جنگ طالبان نہیں جیتے, یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں, کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے, کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں, وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں. وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں, کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے ایک برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے. مشکل زندگی ان بیچاروں کی یار. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں,
मामलात बेहतरी, इस तरह नहीं दुनिया चलती भाई। और इनकी जो जान बख्शी भी हुई है ना तालिबान की, वो उन गारों में छुप के हुई है जो अमेरिका ने इनको बना के दिए थे, तोरा बोरा के गार पहाड़ों के अंदर रशियन वार के दौरान। असला भी था वो रशिया का छोड़ा हुआ था जो ये इस्तेमाल करते रहे। पीछे मैंने आपको बताया 5 ही वो गोसे वक्त हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये रियलिटीज आप जब ये बताऊंगा कहेंगे ये उनका एजेंट है। आप लोग मुझे एजेंट कह भी लें तब भी दुनिया की रियलिटी नहीं बदलती भाई। ना ये बातें इसलिए की जाती हैं कि आपको बुज़दिल बनाया जाए, ये इसलिए किया जाता है तो हमारे नौजवानों को कोई वर्गलाए ना, और ये ना हो कि ये लोग इसराइल अमेरिका तो पहुंच नहीं सकते, सीने पे बम बांध के तो जाके जीएचक्यू के ऊपर ही हमला ना कर दे। ये नौसद रोकने के लिए मैं यहां बोल रहा होता हूं कि टीनेजर्स को गुमराह ना करो। मैं जो पॉलिटिकल लीडर्स की गलतियों को हाईलाइट करता हूं उसके पीछे रीजन ये होती है कि बच्चों को गुमराह ना करो। अपने बच्चे बाहर के मुल्क में रखे हुए हैं, लोगों के बच्चे ना मरवाओ धरनों में। मैं अगर मजहबी जमातों के खिलाफ बोलता हूं इसलिए बोलता हूं कि इनके अपने बच्चे जाके मुमताज कादरी नहीं बनते, लोगों के बच्चों को मुमताज कादरी ना बनाओ। तुम लोग जनाजे पढ़ा के चंदे इकट्ठे करते रहते हो, बस फ्रॉड मचाया हुआ है। तो इराक खत्म हो गया, क्या कर लिया हमने? अब मैं पंजाबी में वो बोलना नहीं चाहता, उर्दू में बोल देता हूं, क्या उखाड़ लिया हमने? कुछ भी नहीं। गया अफगानिस्तान भी, मिस्र का भी उन्होंने डंग निकाल के रख दिया। अखवानुल मुस्लिमून की हुकूमत आई थी, खत्म करवा दी। किसकी मदद से? अरब मुल्कों की मदद से, सिर्फ इसलिए कि वो इसराइल के खिलाफ थे, हालांकि सुन्नी थे, जमात इस्लामी का ही एक ऑफ शूट था। अब सारों को अपने लाले पड़े हैं। तो एक एक करके सारे मुल्क इन्होंने खत्म कर दिए। लबनान का क्या असर किया, शाम का क्या किया, अब लाके वहाबी हुकूमत बिठाई है वहां पे, और उनकी हालत आपके सामने। वो खुद कहते हैं कि हमें तो इसराइल और अमेरिका और तुर्की ने यहां पे बिठाया, और अमेरिका ने हेड मनी भी खत्म कर दी। जो पहले दहशतगर्द था दाइश का, आज वो कह रहे हैं कि वो हीरो है। तो फिर इसका मतलब है कि दहशतगर्द और हीरो कौन बनाता है? अमेरिका। दस्तारबंदी कौन करता है? गौसे वक्त। हां, आज वो किसी को दहशतगर्द कह दें, वो दहशतगर्द है। जिसको कह दें ये बड़ा अच्छा इंसान है, वो अच्छा इंसान है। ये रियलिटी है। अब मैं अपनी ख्वाहिशात को तो रियलिटी नहीं बना सकता। ये तमाम रियलिटीज मेरी ख्वाहिशात नहीं है। मेरी ख्वाहिश तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करे, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो हज का खुतबा दे रहा हो। लेकिन इस तरह करने से कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करते, इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते। भाइयों, कुरान हकीम में एक आयत 3 दफा आई है जिसमें उस अल्टीमेट खिलाफत राशिदा की तरफ इशारा मौजूद। सूरत तौबा में 33 नंबर, सूरत फतह में 28 नंबर और सूरह अस्सफ के अंदर 9 नंबर ये आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। और सूरह अल फतह में आता है वकफा बिल्लाहि शहीदा वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान और दीन हक यानी इस्लाम के साथ मबूस किया, ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिक इसका बुरा मान जाए। वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह अकेला ही गवाह काफी है। ये इस्लाम सुपरसीड करेगा तमाम अदियान को। पूरी दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम की हुकूमत कायम होगी। ये कुरान हकीम में 3 दफा ये इशारा मौजूद है। अभी तक मुसलमानों पर यह वक्त नहीं आया कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर किसी फॉर्म में रही और उसके बाद फिर मामला तलपट होना शुरू हो गए। ओवरऑल गलबा कभी भी मुसलमानों का नहीं आया। और वो 5वां दौर जो हम डिस्कस कर चुके वो आना है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी, महदी कहते हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता, खलीफतुल्लाह महदी।
उनकी खिलाफत कायम होनी है, और वो है वो पांचवा दौर जिसके कॉन्टेक्स्ट में चूंकि ये 12वें खलीफा हैं, और मैं फिर रिपीट कर दूं कि 7 खलीफा ऐसे हैं जिनके खलीफा राशिद होने पे उम्मत का इत्तेफाक है। सैयदुना अबू बकर, सैयदुना उमर, सैयदुना उस्मान, सैयदुना अली, सैयदुना हसन इब्न अली और सैयदुना उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन अलैहिमुस्सलाम। ये 6 हैं जो गुजर चुके, और 12वें खलीफा हैं जो 7वें खलीफा गिनती में, और वैसे एंड पे वो 12वें खलीफा होंगे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, जिनकी बिशारतें अहदीस मुतवातिर में मौजूद। बाद लोगों ने कहा ये हदीसें हैं भी कोई 1-2 सहाबी से गरीब रवायतें हैं। नहीं भाई, हदीसें मुतवातिर हैं। कम अज कम 8 सहाबा के नाम मैं आपको बताता हूं जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से, जो सही मुस्लिम में हदीस है, जिसने वुजू करके पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। 8 की निस्बत से 8 सहाबी कम अज कम हैं जिन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी की हदीसें रवायत की हैं, उनके बारे में प्रेडिक्शंस। ये हदीसें मुतवातिर है, और इससे बड़ा तवातुर ये है अमली तवातुर। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों का इजमा, वो पैदा होने और गार में छुपने वाले मसले को छोड़ दे, शख्सियत पे इत्तफाक है। अब वो 8 सहाबी कौन से हैं? नंबर 1 सैयदुना अली, सैयदुना इब्न मसऊद, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सैयदुना अबू सईद खुदरी, और हमारी मां सैयदा उम्मे सलमा और सैयदुना सोबान रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन। 8 सहाबा ने इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी से मुतल्लिक अहदीस को रवायत किया है। ये तवातुर के साथ है, और मैं अब ये 12 हदीसें एक इंटेलेक्चुअल तरतीब से बयान करने लगा हूं। ये अलग टप नहीं है, 12 की 12 हदीसें एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ हैं, और इसमें जो बुखारी और मुस्लिम है उस पर तो इत्तफाक है। उसके अलावा जितनी हदीसें होंगी उस पे शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह और शेख अल्बानी रहमहुल्लाह का इत्तफाक है उनकी सेहत के ऊपर। बल्कि शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने अपनी वफात से कुछ महीना पहले जो है वो, बल्कि कुछ काफी अरसा पहले, जिल्द 2 मकलात की, उसमें एक मुकम्मल मजमून भी लिखा था इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी पर। मैंने ये रवायतें वहां से भी हासिल की हैं, लिहाजा मैंने उनका नाम ले दिया। तो शेख जुबैर अली ज़ई और शेख अल्बानी भी मुत्तफिक हैं इसकी सेहत के 49 पहली हदीस सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 3449 और मुस्लिम में 392। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा कि जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। अल्लाह, यानी मेरी उम्मत की क्या शान होगी कि अल्लाह का वजीह पैगंबर, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, ईसा इब्ने मरियम, वो तुम में नाजिल होंगे, लेकिन इमाम मेरा उम्मती होगा, वो मुक्तदी होगा। और ये इमाम कौन होगा? वो अगली हदीस दूसरी सही मुस्लिम में सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से 395 नंबर सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हक की खातिर हमेशा क़िताल करता रहेगा और गालिब रहेगा, और फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे अलैहिस्सलाम। तो मुसलमानों का अमीर कहेगा, आए आप हमारी इमामत फरमाएं। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, ज़ाहिर पैगंबरी को छीनी तो नहीं होगी, उम्मती बन के आएंगे लेकिन पैगंबर भी होंगे अल्लाह के। आए आप हमारी इमामत फरमाएं। तो ईसा इब्ने मरियम कहेंगे, नहीं, तुम एक दूसरे पर उमरा हो, अल्लाह ने इस उम्मत को फजीलत बख्शी है, तुम इमामत करो, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और अमीर तुम में से एक। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। असल खातमुन नबिय्यीन की निस्बत की बरकत से ये सारी फजीलत जो है ना, वहां मौजे जो मार रहे हैं ना, ये इमाम महदी की जो मौजे लगेगी, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे। इमाम महदी जब काफिरों के खिलाफ किताल करेंगे, फिर दज्जाल निकलेगा, फिर दज्जाल तो ऊपर हो जाएगा, इमाम महदी उसके ऊपर गलबा नहीं पा सकेंगे, तो फिर अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम के जरिए दज्जाल को कत्ल करवाएगा। सही मुस्लिम में डिटेल अहादीस मौजूद है, और इस पे मेरा पूरा लेक्चर भी है, हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, मसला नंबर 12 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर। और यहां पर ये बात याद रखें, ये एक नमाज है जो इमाम महदी के पीछे हजरत ईसा पढ़ेंगे, वो प्रोटोकॉल के तौर पर। वो रवायतों में डिटेल से आता है कि अकामत हो चुकी होगी। सही मुस्लिम में आता है कि 2 फरिश्तों के सहारे जर्द कपड़े पहने हुए, जर्द रंग की तहमत और ऊपर जर्द रंग की चादर पहने हुए, 2 फरिश्तों के किनारे जो है वो परों पर हाथ रखे हुए ईसा इब्ने मरियम
जामिया दमिश्क शाम के अंदर उतरेंगे मस्जिद के मीनार के ऊपर, ये सही मुस्लिम में मौजूद है। और फिर जब वो हरम तक पहुंचेंगे तो उस वक्त अकामत हो चुकी होगी और इमाम अपने मुसल्ले पर होगा, तो फिर ईसा इब्न मरियम रिगार्ड करेंगे कि तुम अब इकामत चूंकि तुम्हारे लिए हुई है, अब नमाज तुमने पढ़ानी है। लेकिन उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लीडर होंगे, इमाम महदी फिर बैक फुट पे चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर ईसा इब्न मरियम के होते हुए तो कोई शख्स फिर उस तरीके से इमारत नहीं संभाल सकता। और ये अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आएगी कि इमाम महदी जो है वो दज्जाल पर गलबा नहीं पा सके। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां जहां जाएंगे उनके सांस की वजह से वो नमक की तरह पिघलेगा। सही मुस्लिम में आता है मसला नंबर 12, आप सुन लें। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम फिर मुसलमानों की लीडरशिप वो संभालेंगे। इसके सबूत में वो हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस। बुखारी में 3448 और मुस्लिम में 3 तुरुक हैं, 390, 91 और 92, और मिशकात में भी 2 तुरुक इसके मौजूद हैं, 5505 और 5506, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से तुम में नाजिल होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे और माल की रेल पेल होगी और कोई गरीब नहीं बचेगा जो माल एक्सेप्ट करने वाला हो। इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत के खजाने खुल जाएंगे और फिर मुसलमानों का आपस का बुग़्ज़ व कीना भी खत्म हो जाएगा। इसमें आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर हुक्मरान बने, तो हुक्मरान इसलिए बनेंगे कि हजरत इमाम महदी बैक फुट पे चले जाए। और सही मुस्लिम में हदीस है 394 नंबर, उस पे फिर सही मुस्लिम में आगे तबा ताबी के कौल भी मौजूद है। सही मुस्लिम में आगे चलकर 394 नंबर हदीस के अंदर रावी अब्दुर्रहमान अल मुतवफ़ा 158 हिजरी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत की इमामत करेंगे और वो किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे। हनफी शाफी मालिकी जाफरी नहीं पाई जी, किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक। ये तो लिखा हुआ है सही मुस्लिम में। अब मुस्लिम शरीफ अहले हदीसों ने नहीं लिखी हुई भाई, इमाम मुस्लिम ने लिखी हुई है। अहले हदीस मनहज की बात कर रहा हूं, अहले हदीस फिरके की नहीं। ये हमने खुद नहीं लिखी भाई, अहले सुन्नत ने, ये शुरू से चल रही है जिस पे सब मुत्तफिक है। 394 सही मुस्लिम के ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी इमामत करेंगे और किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम्हें चलाएंगे। लेकिन इधर लोगों की तसल्ली नहीं होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हनफियों के सबसे बड़े बुजुर्ग, बल्कि इंटरनेशनल बुजुर्ग हनफियों, काजी सनाउल्लाह पानीपती अल मुतवफ़ा 1225 हिजरी, बरेलवी और देवबंदियों के बड़े बुजुर्ग आज़म। तफसीर मजरी उन्होंने लिखी है, बड़ी मशहूर है। डॉक्टर सरार साहब भी बेचारे अपने बोलपान में उसके हवाले देते थे, उनको नहीं पता कि क्या काम डाल के गए। वो डॉक्टर सरार साहब मुझे कहते थे, बेटा मेरी कंपैरेटिव स्टडी नहीं, मेरी पूरी तहकीक कुरान तक है। तो मैंने कहा हज़रत साहब फिर आप ज़ईफ रिवायतें ना बयान किया करें, जब आपकी तहकीक नहीं है तो आप इसमें हाथ भी ना डाला करें। तो बहरहाल ये काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंद सिलसिले के बुजुर्ग थे और ये शेख अहमद सरहंदी अल मुतवफ़ा 1034 हिजरी, जिनको मुजद्दिद अल-अफ़सानी कहते हैं, जिनके बड़े बुलंद दावे हैं, उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना बातें हैं वो अगर मैं बयान करूं 1 घंटा उस पर भी चाहिए उनके मकतूबात के अंदर। बहरहाल उनके हवाले से उन्होंने तफसीर मजरी, कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, उसके मुकदमे में लिख रहे हैं, कुरान की तफसीर में लिख रहे हैं कि जी शेख अहमद सरहंदी कहते हैं कि बुजुर्गों ने देखा है कशफ के जरिए। ये इनकी सनद होती है, कोई सहाबी नहीं, कोई अहले बैत नहीं, बुजुर्गों ने कशफ के जरिए देखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्बे क़यामत में उतरेंगे वो भी फिक़ह हनफी के मुताबिक अमल करें। और बुजुर्गों ने लगता है बुखारी मुस्लिम को नहीं सी पड़ी हुई। ये मुस्लिम 394 में हमारे बुजुर्ग क्या फरमा रहे हैं, सही मुस्लिम 394 तबा ताबी जो हदीस का रावी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की हदीस का रावी अब्दुर्रहमान अल मुतवफ़ा 158 हिजरी, इमाम हनीफा का हम असर है। इमाम हनीफा का कोई कसूर नहीं, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ज़हन में रखें। हम उनके नाम पर जो फिरका बनाएंगे उसको क्रिटिसाइज करें। तो वो तो कह रहे हैं कि वो किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे, और ये कह रहे हैं फिक़ह हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। और काजी सनाउल्लाह पानीपती साहब ने ये नकल कर दिया, ये कुरान तफसीर मजरी, ये कुरान की तफसीर हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इन लोगों के शर से मुसलमानों को, आम मुसलमानों को महफूज फरमाए। बल कुर्बे क़यामत की जो निशानियां हैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जब तक डेफिनेट कोई चीज सामने ना आए हम उस तरीके से वसूख के साथ किसी निशानी के होने या ना होने का फैसला नहीं कर सकते। मुझे भी अक्सर लोग ईमेल करते हैं कि जी क़यामत की निशानियों के ऊपर शाम के बारे में हदीसें हैं और जनाब ग़ज़वा हिंद पे हदीसें हैं, फलां है फलां। भाई इस तरीके से वो कंफर्म नहीं कर सकता, सबकी परसेप्शन मौजूद है, ठीक है ना जी। एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता, किसी खास हद तक ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। लिहाजा मुझे माफ रखें इस टॉपिक पे, क़यामत की निशानियों के ऊपर। हाँ, क़यामत दड़े जो कुछ होना है उसी पहले ही बयान कर रहे हैं, भाई जी क़यामत की तैयारी करो।
ٹھیک ہے، باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اس طریقے. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابیح جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے، پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اس کے اوپر. اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر، امام مہدی سے ریلیٹڈ، دجال سے ریلیٹڈ. یہ آپ خود پڑھ لیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح کی تیسری جلد میں جو اردو والی ہے، پھر جلدانہ گننی شروع کر دیئے، اردو والی ہے، اردو والی 5 جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیر علی صاحب والی بتا رہا ہوں، جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی، 3 جلدوں والی. اس میں تیسری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے. اب تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، امام مہدی سے ریلیٹڈ، صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم، 7315 سے 7319، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا، آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ، جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نضرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی. لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے، امام محمد بن عبداللہ المہدی. عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز 6ٹھے خلیفہ ہیں، اور 7ویں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی جو گنتی میں 12ویں ہوں گے، ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بن عبد العزیز نہیں، وہ بھی خلیفہ آنا ہے. تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے. یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے. صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اور 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں. 6 گزر چکے ہیں، بیچ میں آئیں گے، اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی. اسی صحیح مسلم کو سپورٹیو 4تھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگلیں گی، زمین نباتات اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا. وہ 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں. یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے، پائیدی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا، تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا. جو اپنا اگائیں گے، اپنا کھائیں گے، وہی بچیں گے. یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا، یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے. رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی. اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا، ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا. یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے، اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے. اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے، کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے. پہلے بھی تو کرتے تھے. اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر. ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد گائے کا پیتا ہے. آپ دودھ پیے تو دودھ ختم کر دیں، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے. یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے. یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے. سورۃ النحل میں میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر، اسی لیے کرائے کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک